Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes to Learn English with Raman sir. Today I am going to talk about pronoun and its kinds. Okay, so let's start with pronoun and its kinds. There are 10 kinds of pronoun. Okay, first one is personal pronoun. Second, demonstrative pronoun. Number third, the reflexive pronoun. Fourth, emphatic. क्या होगा जी? Emphatic pronoun. Fifth one is indefinite pronoun. Number 6, interrogative pronoun. Number 7, reciprocal pronoun. Number 8, relative pronoun. 9 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव. क्या है नाम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नंबर 10 में exclamatory pronoun. Exclamatory pronoun. Right. I repeat. Personal pronoun. Second one is demonstrative. Third, reflexive. Fourth, emphatic. 5, indefinite pronoun. 6, interrogative pronoun. 7, reciprocal pronoun. 8, a relative pronoun. And 9 number में distributive pronoun. And last 10, exclamatory pronoun. Okay, so you have seen one by one personal pronoun. Clear है? What is personal pronoun? Personal pronoun refers some persons or things. As for example, I, we, you, she, he, it, etc. are called personal pronoun, right? When you talk about personal pronoun, then you have to talk about person. Okay, so all of you know person. There are 3 types of persons: first person, second person and third person. Okay, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर में वी का प्रयोग होता है. ठीक है. सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर में यू का प्रयोग होता है. थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और प्लूरल नंबर में दे का प्रयोग होता है. राइट. ऑल आर पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. एज राम इट्स आ मैंगो. इसके जगह पे यदि हम पर्सनल प्रोनाउन को देंगे तो कौन सा देंगे जी? ही इट्स अ मैंगो. ओके, ठीक है. बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, a pronoun is used instead of a noun. Okay, pronoun का प्रयोग नाउन के बदले में होता है. राइट. नाउन है, नाउन के बदले में ही का प्रयोग हुआ है, इसको प्रोनाउन बोलेंगे. राइट. यदि लड़की की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं. जैसे सीता, सीता इट्स अ मैंगो. ठीक है. इसके बदले में क्या आएगा जी? सी का प्रयोग होगा. सी इट्स अ मैंगो. राइट. सी इज द पर्सनल प्रोनाउन. बेटा क्लियर? नेक्स्ट वन इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव. क्या नाम है जी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नहीं लिखे तो इसको लिख लेना भी है.
these that, these those are called demonstrative pronoun. Okay, as for example, this is a student. This is the demonstrative pronoun. These are girls. This is the demonstrative pronoun. Those are boys. Those is the demonstrative pronoun. But remember one thing, when these that, these, those are used just before noun, they are called demonstrative adjective. Okay, you have seen कैसे, how this boy is good. देखिए ये नाउन है, नाउन के पहले दिस का प्रयोग हुआ, ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट. बट वर्ब का प्रयोग किया है, इसके पहले वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, एडजेक्टिव आऊँगा उसमें पढ़ाऊंगा, राइट. क्लियर है, बिठाऊँ. डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. कौन है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद रखना है. नंबर थर्ड, reflexive pronoun. Okay, when action is done, turns back upon the subject, they are called reflexive pronoun. As for example, he hurt himself. Okay, they hurt themselves. Okay, we hurt ourselves. Ourself, themself, himself, herself, yourselves, they are called reflexive pronoun. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, उसने खुद को ठेस पहुंचाया, खुद को जो है ना हर्ट किया, चोट पहुंचाया, राइट. ही हर्ट हिमसेल्फ, दे हर्ट हिमसेल्फ, वे लोगों ने खुद को जो है ना क्या किए, चोट पहुंचाया, राइट. हम लोगों ने खुद को जो है ना क्या किए, चोट पहुंचाया. तो इस तरह का जो भी themself, himself, ourself होता है वर्ड्स, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं. ओके, एंड व्हेन पर्सनल प्रोनाउन इज एडेड विद सेल्फ और सेल्फ्स, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट. क्लियर, बताओ. नेक्स्ट वन इज emphatic प्रोनाउन. कौन है जी, emphatic प्रोनाउन. नंबर 4, emphatic pronoun. There is a slightly difference between emphatic and reflexive pronoun. Okay, क्या है देखिए, when reflexive pronoun is used just after the subject or to sake of emphasis, in a sentence, they are called emphatic pronoun. Okay, as for example, देखिए, when जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद यदि आता है या सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, emphatic प्रोनाउन बोलेंगे. ओके, एज फॉर एग्जाम्पल, he, himself,
heart. She herself cut hair. वह खुद, यहाँ कट्स कीजिए, वह खुद बाल काटती है. ओके, सी हरसेल्फ कट्स हेयर, वह खुद बाल काटती है. राइट, तो ये इस पे जो है क्या हुआ, इम्फेसिस हुआ. दे आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है, दे themselves solve it. वे लोग खुद जो है ना इसे सॉल्व करते हैं. राइट, तो इस तरह का जो होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि आता है तो इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा. राइट, या उस पर देखेंगे कि सेंटेंस में उस पर जो है ना इम्फेसिस हो रहा है कि नहीं. इम्फेसिस होता है तो इम्फेटिक प्रोनाउन, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं. मिटाओ इसको. नेक्स्ट है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन. क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन. नंबर 6. Indefinite pronoun shows indefinite number of persons or things. Okay, as for example, all, some, anybody, nobody. Okay, any of, many of, etc. are called indefinite pronoun. राइट, जैसे देखिए, all are great. All is the indefinite pronoun. Right, some are born great. Some is the indefinite pronoun. Right, anybody can do it. Anybody is the indefinite pronoun. Right, clear है? समझ गए? मिटाओ इसको. इंडिफिनिट के बाद आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन जी? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. राइट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन. एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन refers for asking question in a sentence. Okay, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या बतलाता है? क्वेश्चन करने को बताता है. आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछता है. राइट, क्वेश्चन करता है. दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. एज फॉर एग्जांपल, हु आर यू. ओके, हु इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. विच इज योर फादर. ठीक है, ये देखिए विच इज योर फादर, ये सिलेक्शन का बहुत करा रहा है. राइट, तो सिलेक्शन में क्या होता है? विच का प्रयोग होता है. विच इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. राइट, वेयर इज द रेड फोर्ट. Okay, where is the interrogative pronoun? But when interrogative words are used just before noun, they are called interrogative adjective. वो interrogative adjective हो जाता है.
ठीक है, यहाँ वर्ब के पहले हम लोग प्रयोग किए, इसको क्या बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बट नाउन के पहले होगा उसको क्या बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देख लीजिए, व्हिच बुक इज दिस, किसकी किताब है। व्हिच बुक जो है नाउन है, इसके पहले व्हिच का प्रयोग हुआ, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट, इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। डाउन क्लियर। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, which, who, that, whose are used just after and antecedent. They are called रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सबसे पहले व्हाट इज एंटीसीडेंट, होता क्या है, सुना होगा आपने ना, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माय अंकल, राइट। देखिए, हाउस इज द नाउन और हाउस के जस्ट बाद विच का प्रयोग हुआ, राइट, विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, या वही लड़का है जो कड़ी मेहनत करता है, या वही घर है जो मेरे अंकल का बिलोंग करता है या मेरे अंकल का है, राइट। दिस इज द बॉय इज द नाउन और इसके जस्ट बाद हु का प्रयोग हुआ, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, यही जो है ना आपका एंटीसीडेंट हुआ, जो नाउन होता है उसको क्या बोलेंगे एंटीसीडेंट। क्लियर है, ये क्या होगा आपका एंटीसीडेंट हुआ। क्लियर, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन होगा। मिटाओ, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, टेक एनी वन दैट यू लाइक। ओके, that is the relative pronoun, ठीक है। take anyone that you like, clear, मिटाओ। रिलेटिव प्रोनाउन, आफ्टर दैट रिलेटिव के बाद क्या है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। each other and one another are called reciprocal pronoun, right। as for example, Rahul and Mohan help each other, right। Rahul, Mohan and Shohan help one another. Okay, we have seen these two sentences. Each other, one another को जो है ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। each other का प्रयोग कहाँ होगा, when you are talking about two person, जब two person की बात करेंगे तो वहाँ पे each other का प्रयोग होगा। and we are talking about more than two person,
तो उसमें क्या होगा, वन अनदर का प्रयोग होगा, राइट। राहुल मोहन एंड सोहन हेल्प वन अनदर बोलेंगे। राहुल एंड मोहन दो व्यक्तियों के बीच के बात है, एक दूसरे को मदद करता है, तो हेल्प ईच अदर, तो वहाँ पे हेल्प ईच अदर। लेकिन राहुल मोहन एंड सोहन एक दूसरे को मदद करता है, दो से ज़्यादा जब एक दूसरे की मदद कर रहा है तो वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना होता है। रेसिप्रोकल के बाद क्या होगा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ओके। each every either neither are called distributive pronoun, right। each every either neither आर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसको जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसका, एवरी का, इधर का प्रयोग जब करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल, एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, each boy has a pen, बहुत सारे लड़के बैठे हुए, प्रत्येक के पास एक पेन है। यहाँ देखिए ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया गया है, क्यों, क्योंकि each लगा हुआ है, ठीक है। each इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। देयर आर 200 people and every has a ticket। कह रहा है कि 200 लोग हैं और प्रत्येक के पास क्या है, टिकट है। एवरी जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ, राइट, क्लियर है। इस तरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। Either of you can go out, आप में से कोई भी बाहर जा सकता है, राइट। आइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर ऑफ यू कैन गो, आप में से कोई भी बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्लियर है। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। कौन सा, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, ओके। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन shows surprise, express surprises in a sentence, okay। As for example, what, did you see a ghost? Not of interrogation। क्या तूने एक घोस्ट देखा? आश्चर्य वाली बात है, अरे क्या तूने एक घोस्ट देखा? तो what did you see a ghost, ठीक है। इसको जो है क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, राइट। What, other example, what you don't know it, क्या तुम नहीं जानते हो,
इस तरह का जो बात है वो आश्चर्य को जो प्रयोग करता है, आश्चर्य को जो प्रयोग करेंगे तो उसको जो है ना क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एंड एक और चीज़ है जो बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या बोलते हैं इसको जी? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, राइट। ये जहाँ भी प्रयोग हुआ उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। व्हाट के बाद इसका प्रयोग होता है, राइट, तो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे, राइट। क्लियर? दिस इज द होल डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाना है, प्रेस करना है। एंड प्लीज़ शेयर टू द अदर्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, व्हाटएवर, प्लीज़ शेयर, बिकॉज सारे लोगों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और मेरी बात जो है ना वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैं आपको बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरे ग्रामर सेक्शन से वीडियो बनाऊँगा। सो प्लीज़ लर्न्स अ लॉट टू माई चैनल सुमित्रा क्लासेस ऑन यूट्यूब। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।